Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jai Gaur Premanande, Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Samet Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. So let's do a small prayer and then we can continue. Okay? So we'll do Mangala Charan, that is a prayer to Shri Rukmini Dwarkadis, Radha Syam Sundar. So then we'll discuss on this topic, why to take spirituality in young age. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manovistam Vistapitam Yena Bhutale Swarupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kirpatamam Bande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Iswaram. Hare Krishna. So welcome all of you once again. In fact, we would like to welcome you in ISKCON Dwarka. Of course, Sri Chaitanya Guru might have announced. So again, it is a great pleasure to host all of you here. And how was your experience till now? Yes. So you had darshan? Yes. And maybe feel 30 aarti also they did, right? Oh, that's nice. So aarti, darshan, so that's amazing. So how you came? By metro or? Metro. Okay. So you go back also by. So why to take spirituality in young age? So this is the question that everyone asks most of the time. जब आप
चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Then naturally people they come and ask यार ये उम्र है करने का, क्या कर रहे हो? अभी तो पढ़ने का उम्र है, खेलने कूदने का उम्र है, क्या कर रहे हो आप? Why you are doing all this? तो बुढ़ापे में करने वाली चीजें, why you are doing now? So what is your, ऐसा आप में से कितनों ने ये प्रश्न फेस किया अभी तक? So there are many, and many would be facing in the future. The more you are serious, more you are ठीक है, थोड़ा सा ना टाइम निकाल के थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के लिए भी दिन में थोड़ा सा टाइम निकालना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा. तो जितना थोड़ा सा इसको सिंसियरली लेंगे उतना ये प्रश्न फेस करेंगे. अभी क्यों कर रहे हो? Why to practice spirituality right now? Why you are doing? पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? दिमाग खराब हुआ है? So have you given them feedback for chanting? But you know mantra, right? मंत्र के बारे में आपको पता है, हरे कृष्णा. How many of you have chanted हरे कृष्णा मंत्र? All of you, right? So अरे मतलब कि क्या हो गया? जैसे पहली बार जब मैंने चैंटिंग करना शुरू किया, I was little kind of थोड़ा सा बोल्ड था मैं उस समय. तो सबसे पहले I was basically into art of living में था मैं. तो मैं वो it's hard now. So first of all I was into a little bit enthusiastic, inquisitive about spirituality, क्या है कैसा है. तो art of living में गया, तो वहाँ जाकर yes plus course हो रहा था हमारा. So I attended that course. I liked it very much. और मतलब कोई करे ना करे मैं कमरे में कुछ ना कुछ कर रहा होता था. सुबह सुबह आके देखते थे फ्रेंड इसको क्या हो गया है, कभी उल्टा लटका हुआ हूँ, शीर्षासन. How many of you can do शीर्षासन? Many of you, right? Yeah. So hostel में आप सोचो, how many of you stay in hostel? Okay. And PG, most of you must be in PG, right? So when you are staying in hostel, बहुत सारे friends होते हैं, कमरे में आते हैं, देखते हैं व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है. So it is something shocking for them sometimes, right? Most of the time. So और अभी तो काफी पॉपुलर है, उस समय इतना पॉपुलर नहीं था योगा जितना अभी पॉपुलर है. So I was doing different things. फिर उसके बाद then I got connected to this course, basically discover yourself, and I attended this 6-session course, and after that I felt wow. जब आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये 6-session कोर्स अटेंड करने के बाद या करते हुए ऐसा लगा कि wow? How many of you? Many of you, right? So I was also having same experience. अरे ये चीज एग्जिस्ट करती है और मुझे अभी तक पता नहीं था इसके बारे में. मतलब I was surprised. So I was very boldly doing. तो मैं बैठ के सुबह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. When I chanting, then many of my friends came to me, and then they were saying, अभी करने वाला मतलब ये उम्र है करने का, पागल हो गया. ओके आप मतलब दिलीपुर ढाबा जाकर शराब पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. सो मैं कमरे में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कर रहा हूँ तो दिक्कत है. कॉलेज में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, फर्स्ट ईयर में आता है बच्चा इतना सीधा साधा होता है, बहुत ही सिंपल. माता पिता छोड़ने आते उस बच्चे को, नहीं हॉस्टल में बात करते हैं, बेटा आप भी साथ में बैठे हो, मतलब आप भी साथ में, अच्छा आपका ये रूम है, अच्छा इसका ये है, थोड़ा सा देखना इसको. और वो भी बेचारा सीधा साधा सोता सा होता है बच्चा, राइट. बट बाद में क्या होता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर, पहले दूध पीता था अब कुछ और पीता है. पहले मंदिर जाता था अब कहीं और जाता है. फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोग होते हैं मंदिर, हमारे कॉलेज में अंदर ही मंदिर था एक्चुअली. आपके वहाँ भी होगा नहीं है? सो फर्स्ट ईयर में काफी सारे बच्चे मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं. फाइनल ईयर में तक कितने जाते हैं, कहीं और जाते हैं. सो
So now the point is many ask, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं why you are taking spirituality in young age. अगर कोई आपसे पूछता है what would be your answer? What would be your answer? Yes. कोई आपसे पूछता है why you are practicing spirituality in young age? Yes, please. पहली बात तो spirituality मतलब कोई एज नहीं होती है, आप मतलब भगवान को प्रे कर रहे हो तो उसमें आप एज थोड़ी देखोगे पहली बात। या स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एज नहीं होती, राइट? या ब्रिलियंट पॉइंट। व्हाट इज योर नेम? राहुल, थैंक यू राहुल। सो स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एज नहीं होती। या बैक साइड। यस, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करके सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो शांति कभी भी चाहिए है ना जीवन में, मतलब शांति, पीस ऑफ माइंड, वो वाली शांति। सो कुछ और नहीं बनता। ओके, यस। कनेक्शन एंड कंपैशन फॉर लॉन्ग टर्म। Connection, compassion for long-term happiness. Okay, connection and compassion. Wow, nice. Yeah. What else? Yes. Soul को purify करने के लिए, soul को purify करने के लिए, तो वो तो बुढ़ापे में कर लेते हैं। बुढ़ापे में कर लेंगे ना, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, मौज कर लेते हैं, मजा कर लेते हैं। मजा चाहिए जीवन में, you know. Yes. एनर्जेटिक महसूस करने के लिए। नाइस, यस यस। आई आस्क यू समथिंग, तो आप क्या बोलोगे अगर कोई कहे कि नहीं, मतलब कि वो बुढ़ापे में कर लेंगे सोल को प्यूरिफाई, ज्यादा अच्छा होगा। नाइस नाइस, दैट इज अ नाइस पॉइंट। यस यस। Early we start, early we will be free from this materialistic world. हाँ, अर्ली विल स्टार्ट, अर्ली विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। फिर कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप तो ये बोल रहे हो कि अच्छा फ्री हो जाएंगे हम? नहीं, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है। नहीं? फिर क्या कहोगे आप? सर स्पिरिचुअलिटी सर उसे अटेंड कर लेंगे ना। यस। सर फिर मोह माया का उतना वो नहीं रहेगा। मोह माया का नहीं रहेगा। सो द पॉइंट इज कि जैसे कहा जाता है, इट इज राइट पॉइंट, जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्विस्ट इट। सो द पॉइंट इज कि अगर आप करना ही है तो अभी कर लो ना, क्यों वेट कर रहे हो इतना, राइट? अगर आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने से, आपको जीवन में जीवन का पर्पस मिलता है, राइट? एंड आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है, सो व्हाई नॉट नाउ, है ना? यस, एनीथिंग एल्स? ओके सर, यंग एज में ये करने का कारण सर ये मतलब अपन जो यंग एज में करेंगे तो सर अपना कंसंट्रेशन एक जगह पर रहता है सर, अपन कोई भी काम करेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, तो फोकस रह सकते हैं, कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। यस यस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यस, इंट्रोस्पेक्शन। सर एक और ऐड कर सकता हूँ, सॉरी, एक और ऐड कर सकता हूँ पॉइंट मेरा। वन पॉइंट सर एक और पॉइंट बोल सकते हैं हाँ बताइए। सर। इस एज में सर अपने को मतलब एक मैच्योर होने के लिए किसी आइडियल की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो आइडियल उनको ही माने जो सबके आइडियल, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी वो कौन है? श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाइस नाइस, यस यस। एक सही मार्गदर्शन मिलता है, सही और गलत के बीच का फर्क भी समझ में आने लगता है। हाँ, जब मार्गदर्शन मिलता है तो या वी नीड गाइडेंस। यस यस। हाँ, तो लेट्स डू इट इन यंग एज। या गॉड के बारे में जाने और उनके पाथ पे चले हम। हाँ, तो वो यंग एज में क्यों करें? बुढ़ापे में कर लेते हैं, जब दांत गिर जाते हैं, इधर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तब कर लेते हैं। चल नहीं पाते तब कर लेते हैं, तब चले जाएंगे मंदिर। अभी क्या से करें? चलेंगे तो राइट पाथ पे। अभी तो जवान हो, एंजॉय करना है आपको। ये जवानी है दीवानी, हम लोग आपको कहते हैं। So, yes, yes, please. सर हम नेगेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, जैसे कलयुग है, तो इसमें नेगेटिविटी हर जगह है। तो नेगेटिविटी को फाइट करने के लिए ओनली स्पिरिचुअलिटी ऐसा वे है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे That's a brilliant answer. Yes. जैसे सर आपने कहा कि कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर में जाता है, फिर थर्ड ईयर में पता नहीं क्या हो जाता है, तो इससे बचने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी एक समाज Yeah. So right now so much negativity is there. So इस negativity से बचने के लिए we need spirituality. So I want volunteers. I have a request to volunteers. Please you can keep chart paper somewhere और कुछ groups ऐसा बना सकते हैं जिसमें all of you, I know all of you have wonderful points, right? तो उसमें आप points share कीजिए. Maybe we can make a group. We have a group, right? We have a group. So okay. So this is a assignment for all of you, है ना? हमें यहाँ पे ये point उसमें mention करना है, why to take spirituality in young age, right? So इस मतलब कि आपके जो अपने अपने पॉइंट्स हैं, you just have to post it, right? तो उसमें आपको just send करना है,
ठीक है, या we can do it in a chart paper also. You decide and then you can do it. Okay, so all of you had wonderful answer. Why to take spirituality in young age? So let's discuss few points. Habits and lifestyle. So habits, habit is like a soft bed, which is very easy to go inside but difficult to come out. ऐसा होता है, सॉफ्ट बेड में घुसना आसान होता है, निकलना मुश्किल होता है. कोई निकलना नहीं चाहता, राइट? स्पेशली अभी सर्दियों के मौसम आएंगे तो सुबह उठना तो हालत खराब हो जाएगी, राइट? मुश्किल होगा. So it is very difficult to conquer bad habits. Yes, it is very difficult. We try, लोग बहुत प्रयास करते हैं, प्लान बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं ताकि वो अच्छे हैबिट्स कल्टीवेट कर सकें. प्लान करते हैं, अब से मैं नहीं करूँगा, अब से मैं ऐसे लाइफ स्टाइल जीऊँगा, बट स्टिल दे कांट because it is very difficult to change. And in old age, it is much more difficult, much more difficult. So इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारत आचरत प्रयोग. कुमार अवस्था से ही 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जो हैबिट्स होते हैं वो तो छोटे उम्र से ही बनना शुरू कर लेते हैं. तो बुढ़ापे में कोई सोचे कि मैं चेंज करूंगा, हैबिट नया हैबिट डेवलप करूंगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो दिस यंग एज इज अ टाइम टू चेंज द हैबिट, कल्टीवेट गुड हैबिट्स. यंग एज में हम कल्टीवेट कर सकते हैं. And there are many, sometimes nowadays there are so many things we have around us, so many gadgets. Smartphone is so smart that it make us not so smart, right? So मोबाइल में कितना टाइम निकल जाता है, कितना समय बिताते हैं, है ना? आप अगर कैलकुलेट करें दिन में कितना समय मोबाइल में निकलता है ना? हम सोचते हैं शॉर्ट्स देखेंगे, लंबा वीडियो नहीं देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, right? या रील्स देखेंगे. तो होता तो छोटा है, बट वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पता नहीं कितना निकल जाता है, पता नहीं चलता. सोशल मीडिया एडिक्शन, जब से फेसबुक आया है फेस के सामने भूख नहीं रहता. So there are so many ways of distraction nowadays. मतलब कितना समय इन सब चीजों में जाता है, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, है ना? हम प्लान करते हैं, हम ऐसे पढ़ेंगे, हम हर सेमेस्टर के पहले कुछ प्लानिंग होती है, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग वी कांट डू दैट. एग्जाम आने वाला है, अभी 1 हफ्ते बाद एग्जाम आने वाला है, ठीक है? अब मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा, है ना? आई मेक अ रूटीन. और ये जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट है, इनको मैं एटलीस्ट 2 बार तो रिवाइज करूंगा. सो पहले 2-3 दिन में सारा कर लूंगा, 3-4 दिन में, उसके बाद फिर एक प्लान बनता है. बट उसके बाद क्या होता है, सामने स्मार्टफोन आ जाता है और फिर उसमें इतना समय चला जाता है, इतना समय चला जाता है, सारा प्लान ऐसे ही रहेगा. फिर हम लास्ट टाइम में भागते रहते हैं, एंजाइटीज में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अरे अभी एग्जाम आने वाला है, कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे निकल जाता है. फिर अगला सेमेस्टर आता है, उसमें हम प्लानिंग करते हैं, पिछला सेमेस्टर तो निकल गया, इस सेमेस्टर में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. बट फिर अगेन सेम स्टोरी रिपीट होता है. इट हैपेंस. सो दिस, तो व्यक्ति सोचता है अगर मेरे पास गैजेट है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तो आई बिकम अ मास्टर. बट मैनी अ टाइम ही बिकम स्लेव मोस्ट ऑफ द टाइम. Apparently, externally it may looks कि ओ पूरा दुनिया मेरे मुट्ठी में है. अभी मैं बता सकता हूँ अभी इजराइल और हमास के बीच में क्या हो रहा है, कौन सा बम फटा है, कौन सा रॉकेट उसने भेजा है इधर से उधर. I can say, but अगर उसको ध्यान से देखें तो now am I master or am I slave of my senses, my habits, right? So this is a question: are we the master or are we the slave? Right? So it is now
and later. eat this later. So it is all about habit. Habit. So still यहाँ पे हमने तो सारे स्वीट्स और अच्छे आइटम रखे हैं. कॉलेज में तो बहुत कुछ लेते हैं जो जिसका हमने फोटो यहाँ पे नहीं रखा है. आप सबको पता है, मेरे से ज़्यादा पता है क्या क्या करते हैं. So एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद से पूछा, Can any of you read loudly? माइक है हमारे पास, दूसरा? Do we have? Yeah. So any of you? No, okay. You take the mic and you speak. थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करके पूछना, ऐसे पूछना कि प्रश्न पूछना और मैं उत्तर दूंगा. One person asked Srila Prabhupada, why do we see that most of your followers are young? आप इसको ऐसे बोलिए. One person asked Srila Prabhupada, why do we see that most of your followers are young? One person asked Srila Prabhupada, why do we see that most of your followers are young? Why are most people in school and colleges young? Why don't we have people working in their childhood and youth and in their old age going to school and colleges? Why are most people in schools and colleges young? Question. वो तो मैंने बोल दिया ना सेकंड. Question. थर्ड आपको बोला. The person answered, because that's the age for learning. Exactly. This is the time for learning. The youth is the time for learning. If you want people to learn certain principles and internalize them, it takes time. So it is the time for learning. So therefore it is so important to practice spirituality young age. Because youth is the time for learning. Abhi nahi to kabhi nahi. So this youth is the time. So Srila Prabhupada used to say that this human body is like the boat. Just a minute, it is not coming properly. Maybe now. Okay, yeah. So Srila Prabhupada says, what he says? Give mic to someone else. Yeah. किसी और को दो. Please read. Srila Prabhupada says, human body is like a boat and you are in the midst of ocean. Don't think that nature of ocean is going to change, but to expertise of boatman can change. So what Srila Prabhupada is trying to say in this? He is saying कि जैसे ओशन के बीच में है, ओशन के बीच में है, तो ओशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना? ओशन का तो नेचर ही है, लहरें आएंगी और मतलब it will not be very pleasant situation, but we can change the expertise of a boatman. Similarly ये जो संसार है, ये संसार चेंज नहीं होगा. We may try so many things, but संसार तो संसार है. आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है ये संसार दुखालय अशाश्वतम है? आपने सुना होगा, डिस्कवरी और सब्सेशन में कवर हुआ होगा, राइट? इस संसार को कहा गया है दुखालय. पुस्तकालय में क्या मिलेगा? भोजनालय में क्या मिलेगा? दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा. तो जितना भी कर ले, अगर ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा, बट आएगा, आएगा. इसीलिए बोल दिया दुखालय. One can try practically, right? स्पेशली जब हम सेमिनार देते हैं, जब स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं, तो उस टाइम आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं. अदरवाइज किसी और मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट, तो वो सोच नहीं पाते इतना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में इतना पता नहीं रहता संसार में कितना दुख है. इट इज लिटिल डिफिकल्ट. बट जब आप जॉब में जाते हो, शादी करते हो, यू नो, आगे बढ़ते हो, तब पता लगता है जीवन में इतना कुछ है. एक बार एक व्यक्ति था, मतलब मोस्टली ये हर किसी की कहानी है. जब हम छोटे होते हैं हमें क्या कहा जाता है, बेटा 10th कर ले, बहुत बढ़िया होगा, लाइफ सेट हो जाएगा. हम बोलते ठीक है कर लेते हैं. बहुत मेहनत किया, 10th कर लिया, नंबर अच्छे आ गए, थोड़ी खुशी हुई. फिर उसके बाद कहा गया कि बेटा अभी ना 12th कर ले, 11th 12th अच्छे से कर लेगा ना.
ये 2 साल बस मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। फिर 2 साल मेहनत किया, पढ़ाई की, अच्छा नंबर लिया। फिर कहा गया कि ये जो इंट्रांस है ना, ये मेन है। इट इज लाइक अ कोका कोला बोतल। घुसना बहुत मुश्किल है, घुसने के बाद ना बहुत जाएगा, आनंद ही आनंद है। तो बढ़िया है। तो किया, बहुत मेहनत किया, रात दिन एक किए, 16 घंटे पढ़े, नाम निकला कहीं पे। अब सोचा अब तो शांति मिलेगी। अब तो क्या शांति मिलनी थी, अब तो एक सेमेस्टर में कितने 32 एग्जाम, भागते रहो। एक बार सेमेस्टर शुरू हो जाए, अंत तक बस कुछ ना कुछ चलता रहता है। एग्जाम से जस्ट पहले एक 40 पेज का असाइनमेंट मिल जाता है, यहाँ से आएगा प्रश्न, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अच्छा 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी कहाँ से आएंगे? फिर दूसरा नोट मिलता है। फिर उसके बाद व्यक्ति सोचता है जॉब लग जाएगी ना एक बार, जॉब तब सेट हो जाएगा। जब जॉब के लिए भी जद्दोजहद करता है और जॉब भी लग जाती है। फिर कहता है पहले तो ऐसा लगता था कभी साल में एक बार एग्जाम आता था, अभी तो ऐसा लगता है हर दिन एग्जाम है, हर दिन एग्जाम। अब तो लाइफ भूल जाए, टाइम नहीं होता, फोन करने का टाइम नहीं होता, बात करने का टाइम नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलता। दशहरा दिवाली है ना, कितना छुट्टी मिलता है, घर जाते थे पहले तो, अब तो छुट्टी नहीं मिल पाता, घर नहीं जा पाते। फिर सोचता है शादी कर लूंगा ना, शादी कर लूंगा, then I'll be happy। तब मेरा जीवन बहुत अच्छा हो। एक बार शादी हो जाएगी ना, अच्छी लड़की मिल जाएगी, बहुत बढ़िया, शादी कर लेते हैं। शादी कर लेता है तो फिर तो जो जिसको खाओ पछताओ, ना खाओ पछताओ। तो शादी से पहले व्यक्ति बोलता है अपने गर्लफ्रेंड को, कहता है तुम तो चंद्रमुखी हो। तो फिर उसके बाद शादी होती है, शादी के 1 साल तक व्यक्ति बोलता है तुम तो सूर्यमुखी हो। ठीक है, सूर्यमुखी भी ठीक है, इतना गलत नहीं। फिर उसके बाद 4-5 साल होता है, फिर तो बोलता है तुम तो ज्वालामुखी निकली है। So now the point is कि ये संसार जो है इसमें हैप्पीनेस दिखता है, हैप्पीनेस है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर ये मिल जाएगा ना I'll be happy, ऐसा हो जाएगा तो I'll be happy, अगर ये गाड़ी मुझे मिल जाएगा I'll be happy, अगर वो लड़की मिल जाएगी ना मैं खुश हूँगा, अगर वो मुझे जॉब मिल जाएगा I'll be happy। ये प्रॉमिस है, बट जब मिल जाता है पता नहीं हैप्पीनेस कहाँ चला जाता है। So how many of you are topper in the class? आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी टॉप किया हो? Many. So जब आपने टॉप किया था उस दिन कितने खुश थे आप जब रिजल्ट आया था? बहुत ज्यादा खुश थे। आज वो खुशी किधर है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या 4 दिन, उसके बाद नॉर्मल। तो एक प्रॉमिस है, बट कहीं ना कहीं वो नहीं मिलता, क्योंकि ये संसार क्या है, दुखा लेने सांसों में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो? अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप परिस्थिति नहीं चेंज कर सकते, आप मनस्थिति चेंज कर सकते हो। That we can do. So this habit, it is very difficult to change. Very difficult. एक बार एक व्यक्ति था, पूरा जीवन उसने कपड़े के बिजनेस किया, बिजनेसमैन था, पैसा कमाया, अच्छा खासा कमाया। उसके बच्चे थे, 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी। तो बेटा बेटी बड़े हो गए, उनका शादी हो गया, वो बिजनेस में डूबा हुआ था। अब बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद हो रहे हैं, दांत भी गिरने लग गए, फिर भी उसका मन बिजनेस में ही लगा हुआ है, हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता है। तो एक बार उसके जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि काश हमारे पिताजी भगवान का नाम लेते हैं, है ना, मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं। अब तो वृद्ध हो गए हैं, अब
अब तो भजन करने का उम्र है, भगवान की भक्ति करने का उम्र है, अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी बिजनेस बिजनेस, पैसा 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 वही कर रहे हैं। तो बहुत ही चिंतित थे बच्चे। तो उन्होंने अलग अलग साधुओं को बुलाया, अलग अलग लोगों को बुलाया घर पे। उन्होंने बोला हमारे जो पिताजी हैं उनको आप पढ़ाइए, उनको कुछ बताइए, भगवत गीता के बारे में बताइए, कुछ तो बताइए। तो बहुत सारे साधु आते थे, प्रयास करते थे, बट ये जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत ही ठीक था, सुनता नहीं था। सुनता भी था तो फिर से बिजनेस की बातें करता था। ये मतलब यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे हो गया। तो फिर क्या हुआ, वो ठीक है अब कुछ होने वाला नहीं, वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठे थे। फिर उसके बाद दो लोग आए वहाँ पे, दो साधु आए। उन्होंने बोला हम लोग ठीक कर देंगे आपके पिता को, उनको पूरा हम स्पिरिचुअलिटी में पूरा लेके आएंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा ऐसा, उनका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा था हाँ ये कर देंगे। तो उन्होंने बोला इनको लेकर ना हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे, तीर्थ यात्रा में जाकर इनको हम वहां जाकर फिर इनको बताएंगे और ये चेंज हो जाएंगे पूरा। 1 महीने का तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। तो ठीक है चलिए, तो चले गए उनको लेकर तीर्थ यात्रा में गए। तो तीर्थ यात्रा में जाते हुए भी वो बिजनेस की बातें कर रहे थे, बट फिर भी अलग अलग जगह ले गए। बहुत प्रयास किया इन साधुओं ने, बट कहीं भी ले जाए मतलब उनका मन में मतलब भगवान के प्रति आकर्षण, जप करना, ये सब करना कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं। वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। फाइनली वो वाराणसी आए। वहां आकर उन्होंने, आपको पता है मणिकर्णिका घाट जहाँ पे लाश जलती रहती है, तो वहां आकर बैठे थोड़ी देर, थक गए थे कर मतलब उनको ले जाकर। अब तो उनको भी लग गया था ये परिवर्तित नहीं होंगे। फिर फाइनली उन्होंने, वहां पे बहुत सारे लाशें जल रही थी, तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था ये रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। तो ये जो साधु थे ये सोचने लगे कि अब तो कुछ परिवर्तन हुआ है, इतने तीर्थ स्थल में हम भ्रमण किए हैं, अब तो कुछ हुआ है, अब तो इनके जीवन में कुछ चेंजेस आया। अब हमारा जो हमने जितना मेहनत किया उसका फल मिलने का समय आया। तो बड़े खुश हैं, व्यक्ति रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। अब इसको पता लग गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन फूटा है। तो बहुत ही उत्साह के साथ वो ऐसे देख रहे थे उसको रोते हुए। फिर जाके पूछा आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, बताओ बताओ बताओ, आपको क्या लग रहा है? तो फिर वो व्यक्ति कहता है मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जहाँ यही तो हम कह रहे थे, पूरा जीवन हमने बर्बाद कर दिया, हमने भगवान की भक्ति नहीं की। और बताओ क्यों रो रहे हो? मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने पूरा जीवन कपड़े का बिजनेस किया। अगर लकड़ी का बिजनेस करता आज मैं करोड़पति अरबपति हो जाता। So it is very difficult to change the habits, right? So youth, young age is the time to change our habit, and we can just work on ourselves. We can ask ourselves, what are the bad habits on which I can work on, right? So we can ask different questions. अब now प्रश्न आता है कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। बट नाउ क्वेश्चन इज हु इज यंग एंड हु इज ओल्ड? हु इज यंग एंड हु इज ओल्ड? व्हाट इज द डेफिनेशन? वन डेफिनेशन इज जो व्यक्ति के बाल सफेद हो गए है ना, और दांत गिर रहे हैं, और यहाँ पे रिंकल्स आ गए हैं, चलने में दिक्कत होता है, घुटने में दर्द है, वो एक एजिंग होता है, तो बुढ़ापे का लक्षण है। शास्त्र इसका कुछ अलग डेफिनेशन देते हैं। क्या डेफिनेशन देते हैं? वो कहते हैं कि एक तो ये हो गया कि व्यक्ति एजिंग के थ्रू जा रहा है, बूढ़ा हो गया। दूसरा डेफिनेशन ये है, द पर्सन इज मोर नियर टू डेथ, इज मोर ओल्ड। जैसे कोई एक व्यक्ति है 70 साल का है, वो मरने वाला है 100 साल की उम्र में, और एक व्यक्ति 20 साल का, वो मरने वाला है 5 दिन के बाद। कौन ज्यादा ओल्ड है? 20 साल का।
So proximity to death, that decide who is old and who is young. So that is the another definition of old age, right? And death can come at any time. Anytime. It is equal to everyone. It can come at any time. एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, it was one of our college, basically Mumbai, one of our devotee was preaching, he was giving seminars, right? तो उन्होंने उनको बुलाया, आप डिस्कवरी और सेमिनार में आ जाओ, है ना, उसका लास्ट सेशन है आज। तो अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो स्पेशली उस तरफ ये डांडिया बहुत होता है, राइट? डांडिया और ये सब बहुत फेमस है। तो उसने कहा सर मैं तो आज आ नहीं पाऊंगा, मुझे ना डांडिया में जाना है, आज तो आ नहीं पाऊंगा मैं। मैंने बोला नहीं आ जाओ, बाद में चले जाना डांडिया। तो नहीं हो, तो then he went to डांडिया डांस and then finally अगले दिन पता लगा एक्चुअली ही वेंट फॉर डांडिया डांस। फिर डांस करते 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 जब वो वापस आ रहा था वहां से, देन ही डाइड बिकॉज़ ऑफ हार्ट अटैक। सो अभी तो हार्ट अटैक भी बहुत कम उम्र में भी हो जाता है आजकल। एंड हार्ट डिजीज इज वन ऑफ द डिजीज जिससे मतलब हार्ट डिजीज ऐसा डिजीज है जिससे सबसे ज्यादा लोग मरते हैं आजकल। डिजीज में से भी हार्ट डिजीज नंबर 1 नंबर 2 में आता है बेसिकली। और कैंसर इज आल्सो कॉम्पिटिंग। मतलब कोविड में जितने मरे उतने लोग एक साल में मर लेते हैं हार्ट डिजीज, बिकॉज इट इज सो nowadays. So he died actually. He was a young boy. He died. And he was fit and fine. कुछ पता नहीं, sometimes आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ आपने सुना होगा, अच्छा व्यक्ति अच्छा बना है, but he died. कोई कंसर्न करते हुए मर गया व्यक्ति, कुछ कर रहा था, करते करते ही died. So death can come at any time. एक बार एक बच्चा था, and he was playing. माता पिता सामने नहीं थे, मतलब घर में ही थे, बट वो किसी कमरे में था, वो किचन में काम कर रहे थे, माता जो किचन में काम कर रही थी, पिता बाहर थे। तो बच्चा खेल रहा था, तो प्रेशर कुकर का जो वो होता है उसके साथ, है ना, सीटी जो होती है उसके साथ खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चे तो मुंह में डाल लेते हैं उसने, खा लिया, वो गले में फंस गया, नहीं टाइम। तो डेथ कैन कम एट एनी टाइम, एंड हाउ कैन वी गारंटी कि व्यक्ति का बुढ़ापे में करेंगे, बट बुढ़ापे तक जिएंगे नहीं जिएंगे, क्या व्हाट इज द गारंटी? एंड नाउडेज देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स, so many disease, war, so much is going on, right? So it is very difficult to say that I'll, मतलब बुढ़ापे में करेंगे बट बुढ़ापे तक जिएंगे नहीं जिएंगे, it is difficult to say. So many students they commit suicide nowadays. तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि ठीक है, एक्चुअली ना अभी बहुत सारे डिजायर हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, है ना, उसके बाद कर लेंगे। अभी तो बहुत डिजायर है ना, ठीक है, डिजायर पूरा कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, ऐसा कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते भी ऐसा, बट प्रश्न आता है कि डिजायर का कोई अंत है? डिजायर का भी अंत होता है कि मेरे पास 5 डिजायर है, ये फुलफिल हो गया तो अंत हो गया आप डिजायर का। डिजायर तो नहीं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। इसीलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वेद्यो यति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये रियल है और ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, ऐसे घटनाएं हमारे सोसाइटी में जो आपको दिख रहा है। अंगम गलितम मतलब सारे अंग गल चुके हैं, गल चुके हैं मतलब काम नहीं कर रहे। पलितम मुंडम जो सर में जो बाल हैं अब गिन सकते हैं, we can count the hair. I'm sorry, I don't have hair.
बट बुढ़ापे में आप काउंट कर सकते हो कितने बाल हैं उसके सर में, right? पलितम मुंडम दस विहीन जातम तुंडम, मतलब कि पहले उसके 32 दांत थे, बट अब कितने दांत हैं? गिर चुके हैं, दांत है ही नहीं। ऐसी स्थिति है। और वेदो येति गृहीत्वा दंडम, पहले 2 पैर थे उसके, अभी कितने हैं? 3 पैर हैं। लाठी भी आ गई है, दंडम आ चुका है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तब भी आशा खत्म नहीं होती, तब भी डिजायर खत्म नहीं होते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, बेसिकली अकबर बिरबल का आपने सुना होगा। तो अकबर ने एक बार कहा कि ये जो कहा जाता है ना कि नहीं, बिरबल ने अकबर को कहा कि ये जो डिजायर है ना, ये तो कभी खत्म होता ही नहीं है, और स्पेशली ये जो काम है ना, काम वासना, ये तो कभी खत्म नहीं होती। तो अकबर ने कहा क्या बात कर रहे हैं, डिजायर तो खत्म हो जाते हैं। जो जवान होते हैं उनके अंदर बहुत डिजायर होते हैं, जैसे जैसे बूढ़ा हो जाते हैं डिजायर खत्म हो जाते हैं। तो बिरबल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तो बिरबल वाज वेरी इंटेलिजेंट, राइट? तो बिरबल ने कहा ठीक है, मैं आप ना, एक हमारे गांव में एक वृद्ध व्यक्ति है यहीं पास में, वो लगभग डेथ बेड में, मृत्यु शैया में है, और लेटा हुआ है व्यक्ति, हाथ हिला नहीं सकता, सर नहीं हिला सकता, बस आंखें खोलता है, थोड़ा बहुत सुनाई देता है उसको, बस सुनता है और कुछ नहीं है, मतलब लगभग वो मर चुका है व्यक्ति। तो उसके पास हम जाएंगे मिलने के लिए। तो अकबर ने बोला ठीक है चलेंगे। तो बिरबल ने कहा अपनी जो बेटी है ना, उसको ले आना सर। अकबर ने बोला ठीक है ले आएंगे। तो अकबर की जो बेटी थी जवान थी, वो तो तीनों गए वहां पे। तो सबसे पहले बिरबल गया अंदर, तो उसने उसको देखा, तो वो व्यक्ति ने देखा बिरबल को, बट इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। फिर अकबर आए, फिर बिरबल ने कहा ये जो है ये महाराजा धीराज हैं, और ये तो राजा है यहाँ के अकबर, और वो व्यक्ति जानता भी था। तो उसने ऐसे, बस वो ऐसे करके आंखें उसने ऐसे किए, सर नहीं हिला। फिर उसके बाद उसकी बेटी है, तो बिरबल ने कहा ये इनकी बेटी है, और आते ही वो पैर में उनका वो था, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं पैर में जो बांधते हैं, घुंघरू, राइट? घुंघरू था, तो उसका आवाज छन 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 आवाज आ रहा था। आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए, और बिरबल ने कहा ये जो राजा है उनकी बेटी है। तो वो व्यक्ति जो सर नहीं हिला पा रहा था, ऐसे देखता था, ऐसे देखता। तो बिरबल ने कहा देखो इसको। तो डिजायर कभी खत्म नहीं होते, कभी नहीं खत्म होते, कि डिजायर खत्म कर लेंगे, एक बार खेल लेंगे अच्छे से, एक बार अच्छे से सारा कुछ कर लेंगे, फिर उसके बाद भक्ति करेंगे, खत्म कभी नहीं होते। समय के साथ साथ सब कुछ डिटोरेट होता है। टाइम इज सो पावरफुल, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड बाय टाइम, बट एक चीज खत्म नहीं होती, वो क्या है? डिजायर खत्म नहीं होती। So we should work right now. Right? So this is the time. And now next point is responsibilities. Responsibility. अभी यंग है, जब यंग है, यूथ है, तो तब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? काम है। बाद में तो इतने रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, इतने आ जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम सेमिनार करते हैं, जो गृहस्थ डिवोटीज को भी हम सेमिनार देते हैं, जो गृहस्थ जीवन में है, उनको हम जब बताते हैं ये सब चीजें, उनको बोलते हैं आप थोड़ा सा समय निकालिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आप भगवान का नाम जप कीजिए। समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट because there is so much responsibility they are having, but right now when you are young we can have some time, right? Responsibilities कम है, anxieties कम है, but जैसे जैसे हम बड़े होंगे ये सब बढ़ती जाएगी, right? So youth, young age में क्या होता है? Responsibility और attachments कम होता है। So we offer fresh flower to someone who is our beloved.
जब भगवान के पास हम जाएं, भगवान के पास जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? फूल लेकर जाते हैं, फ्रूट्स लेकर जाते हैं। कैसे फूल लेके जाने चाहिए? फ्रेश फ्रूट, जूसी। भगवान को बेस्ट से बेस्ट चीज ऑफर करना चाहिए, बिकॉज ही इज द वेल विशर। भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां। आपने डिस्कवरी और सेल्फ के फिफ्थ सेशन में ये चीज डिस्कस किया होगा। अगर हमारे जीवन के केंद्र बिंदु भगवान होंगे, then we can make 100 सर्कल ना। जब सेंटर एक होगा तो 100,000 जितने भी सर्कल बना सकते हैं, बट केंद्र बिंदु अलग अलग होंगे तब क्लैशेस होंगे। बट जीवन के केंद्र में भगवान होंगे। जब पेड़ के जड़ में जब पानी डालेंगे तो सारा पेड़ कैसा होगा? हरा भरा होगा। उसी प्रकार से जब भगवान केंद्र बिंदु होंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? आनंदित होगा, हरा भरा होगा। तो भगवान को सेंटर में रखना है। तो भगवान, तो ये भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान है। भक्त पूरा प्रयास करता है भगवान को बेस्ट तरीके से उनका सेवा करने का, और भगवान भी पूरा एनर्जी एफर्ट लगाते हैं ताकि भक्तों का सेवा करें। और भगवान और भक्त के बीच में ये कंपटीशन चलता रहता है। भक्त भगवान का सेवा करना चाहता है, भगवान भक्त का सेवा करना चाहता है। तो भगवान के पास जाता है भक्त तो फ्रेश फ्लावर लेकर जाता है, बेस्ट से बेस्ट चीज भगवान को ऑफर करता है। और जब हम यंग हैं, जब हमारे पास एनर्जी है, तो तब हमें भगवान के पास जाएंगे, तब भगवान ज्यादा खुश होंगे। या बुढ़ापे में सब कुछ कर लिया, अब थक गए, कोई पूछ नहीं रहा, हड्डियां काम नहीं कर रही, दांतें निकल गए हैं, दिखाई नहीं देता सही से, तब जाके ठाकुर जी अब मैंने अपना जीवन दे दिया आपको। So when we are young, that time if we go to Lord, I'm not telling कि अच्छा अब सब छोड़ दो, कल से क्लास जाना बंद, अब यही रुकना है, सबको धोती कुर्ता दे देंगे, सबके क्या बोलते हैं इसको, हेड शेव कर देंगे। I'm not telling that, but you know, आप वो करते करते भी भगवान को केंद्र में रख सकते हैं, है ना। भक्ति के साथ साथ ये करते हैं। जब महाभारत के युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा? What is that verse? माम अनुस्मर युद्धेच, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। ऐसा नहीं बोला युद्ध छोड़ो और बैठ जाओ ध्यान में, ये भी नहीं बोला। बस युद्ध करते रहो और कुछ मत करो, ये भी नहीं बोला। माम अनुस्मर युद्धेच, राइट? Do spirituality, practice spirituality at the same time do your duty. So जब हम यंग हैं तब हम, जब एनर्जी है तब हम कुछ कर सकते हैं, उस समय भगवान के पास जाते हैं, we can please him more. So therefore all of us are so fortunate. हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस समय में हमें पता लगा कि ऐसा कुछ है। भगवद गीता नामक ग्रंथ है, उसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, it's so rich and we are so fortunate that right now we know that. We know that. And by the mercy of Srila Prabhupada, this spirituality is given in such a way that we can practice it. आप पढ़ाई करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। सतयुग में होते तो आपको जंगल जाना पड़ता, हजारों साल तपस्या करना पड़ता। त्रेता युग होते बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता, द्वापर युग में भी बहुत कठिन है प्रोसेस। परंतु कलयुग में इतना सिंपल, और प्रभुपाद की कृपा से हमें जो स्पिरिचुअलिटी इतने सिंप्लीफाइड वे में हमें मिली है, हम पढ़ाई करते करते हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी आर सो फॉर्चुनेट। सो वी ऑफर फ्रेश फ्लावर, नॉट कि सूखा हुआ फूल लेकर कोई व्यक्ति चला गया, आई लव यू, सो उसको कुछ और ही मिलेगा। सो ये हम आज डिस्कस किया हमने, बेनिफिट ऑफ एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअलिटी इन यंग एज। हैबिट्स कैन बी चेंज्ड इन यंग एज। With old age, learning goes down. So this is the time to learn. Death can come at any moment. Responsibility and attachments are less in one's youth. We offer fresh flower to someone who is our parents, right? So thank you so much to all the devotees. Last point I just want to read from Srila Prabhupada.
So, any of you can take mic and start reading. Please, go ahead. पढ़ो, आप पढ़ो, mic आता है. आप जोर से ऐसे पढ़ो. Yeah, please complete it. What they are thinking that to become animals is them to life just like standing naked or going long steps. Without Krishna, that's not possible. Thank you so much. Your name? Vidya. Okay, thank you, Vidya. That's a very nice name, Vidya. Practically, we see the youth of your country. Prabhupada जब अमेरिका गए थे, Western country में थे, he's saying that practically we see the youth of your country has become very much frustrated by trying to enjoy this dead body. They are seeking to find the point of real life which has become lost. But they are thinking that to become animals will give them new life. जब शिला प्रभुपाद वेस्ट में गए थे, वहाँ पे हिप्पी कल्चर था, आपको पता होगा. हिप्पी कल्चर, इट वाज ओपन कल्चर, फ्रीली लड़के लड़कियां मिक्स करते थे, मिक्स होते थे, शराब पीना, ये सब करना. आपने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल सुना है? व्हाट आर दे? फर्स्ट, नो गैम्बलिंग. सेकंड, नो इंटॉक्सिकेशन. थर्ड, नो मेंटेनिंग. फोर्थ, नो इलिसिट सेक्स. तो ये सारे 4 नियम ये जो हिप्पीज थे तोड़ते थे हर बार. सो उन्हीं को शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि practically we see that youth of your country has become very much frustrated. Although they have everything, but still they are frustrated. क्यों? क्योंकि भगवान उनके जीवन के केंद्र में नहीं है. So that is the password for happiness. That is the password for real life. जब भगवान केंद्र में होते हैं, then you can be happy. We all can be happy. And प्रभुपाद ने practically इसको demonstrate किया. ऐसे हिप्पी जो कुछ restriction नहीं था, खुला रहते थे, कब क्या कर दे पता नहीं है. ऐसे hippies gradually they started practicing spirituality, reading Bhagavad Gita, chanting Hare Krishna. Their life is totally transformed. So much so that now they are such a great leaders. Now they are living such a wonderful devotional spiritual life. They are so happy, blissful, and preaching this message, distributing this message, teaching this message to everyone around the world. So that is the situation. So thank you so much to all the devotees for your time. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So one word for the lecture. How was the lecture? Wonderful. So जैसे कि I promised you कि Prabhuji's words, they are not just information, they are the words which can give you transformation. And I hope very, very important learnings. You must be inspired to take up Krishna consciousness in youth. How many of you are inspired? Haribol! So we would like to thank Prabhuji, and our way of thanking is by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Praise Balimrari Prabhu ki Jai. शिला प्रभुपाद की जय. दिल्ली यूनिवर्सिटी भक्त वृंद की जय.